numerical is a 0 point so next important numerical is a 0.001 molar solution of a complex with molecular formula this is the molecular formula he has given, and this is in water, showed a freezing point depression of 0.0054 degree Celsius. So this is depression in freezing point he has given, और Kf दिया हुआ है इसने water का, Kf for water is 1.80, and he is asking for what is the correct formulation of the molecule with the proper coordination sphere. You have to write the correct formulation, correct formula लिखना है इसका आपने. So what will be correct formula? This is the question. 0.001 molar solution of a complex with molecular formula, वो molecular formula given है आपको, और water में it showed a freezing point depression of 0.004 degree Celsius. Delta TF given है आपको, delta TF is given and KF is given. Correct formula लिखना है, तो इस case में you have to calculate I for this. अगर 100% आयनाइजेशन मान लें तो then you have to calculate the value of I, कि कितने आयंस बनेंगे अगर आप इसकी complete आयनाइजेशन मान लें. जो भी ये वाला कम्प्लेक्स है इसमें Cl बाहर भी हो सकते हैं, कुछ Cl बाहर हो सकते हैं, हो सकता है सारे Cl बाहर हो, कितने आयंस बनेंगे उसके हिसाब से हमने इसका फॉर्मूला लिखना है. सबसे पहले कितने आयंस बनेंगे ये निकालना है, और कितने आयंस बनेंगे ये निकालने के लिए आपने I की वैल्यू निकालनी है, और जितनी I की वैल्यू आएगी उतने ही नंबर ऑफ आयंस होंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस पता चल गए then you can calculate, then you can formulate the formula of this complex easily. So your aim should be to calculate the value of I. To calculate the value of I, क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे, depression in freezing point is given, that is delta TF is given. You have to use this formula. Delta TF is equal to I into KF into M. Molality directly given है इसमें 0.001, delta TF given है 0.0054, I you have to calculate, KF will be 1.80, molality is 0.001. So by using this formula, I is equal to this divided by 1.80 into 0.001, and this will be equal to 3. That means number of ions, 100% ionization होती है अगर, तो number of ions formed will be 3. So what should be the formula? So what should be the formula? Number of ions अगर 3 बन रहे हैं तो formula can be platinum NH3 4 times, 2 Cl अंदर रहने दीजिए और 2 Cl बाहर आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे देखिए इसमें. एक तो ये वाला केटाइन बनेगा, दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस केटाइन विल बी फॉर्म्ड, प्लेटिनम NH3 4 times Cl2 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव. अगर ये वाला हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें एक तो ये वाला केटाइन बनेगा, दिस केटाइन
2 पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे कौन से बनेंगे, क्लोराइड आयंस बनेंगे, 2 क्लोराइड आयंस बनेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस इसमें कितने बन रहे हैं, 1 + 2 दैट इज 3. So this will be the correct formulation of this type of compound. अगर ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप I निकालें, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फॉर्मूला बताना है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उस केस में आपने क्या करना है, I निकाल लेना है, और I आ गया, जितनी वैल्यू I की आएगी that will correspond to number of ions formed by that particular compound. तो इसमें भी मैंने यही किया कि डेल्टा TF इसने गिवन है 0.0054 डिग्री सेल्सियस, I मैंने निकाला है, KF की वैल्यू दी हुई थी 1.80, मोलैलिटी डायरेक्टली गिवन थी 0.001, so I will be equal to 3 in this case. So formula has to be this only, because this type of coordination compound forms these 3 ions. So next important question is that we are given the normal molecular mass and the observed molecular mass in the next question, और उससे सबसे पहले आपने I निकालना है, because I आपको बताया गया है जो Van't Hoff factor है, that is normal molecular mass upon observed molecular mass, और क्या बताया था, observed colligative property divided by normal colligative property. So next question is that the values of observed and calculated molecular weights of silver nitrate AgNO3 silver nitrate are 92.64 and 170 respectively. You have to calculate degree of dissociation. You have to calculate alpha, degree of dissociation in this numerical. So देखिए इसने information क्या given है कि the values of observed and calculated molecular weights. So observed, and this is normal molecular weight. Calculated means this is the normal and this is observed molecular weights of silver nitrate at this and this respectively. You have to calculate alpha. और अल्फा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1. सो इसके अल्फा निकालने के लिए आपको I कैलकुलेट करना पड़ेगा इस केस में, और I क्या होता है, I इज नो से याद रखना बताया था मैंने आपको, नो से. सो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शुड बी in the numerator and observed molecular mass should be in the denominator. So normal molecular mass इसमें second वाला 170 divided by observed molecular mass in this case is 92.64, or this will be I, and I is 1.835. और जब I निकल गया अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा क्या होगा I-1 अपॉन n-1. I की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1.835 -1 अपॉन n क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3. सो हाउ मेनी आयंस, Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव. कितने आयंस, 2 आयंस बनेंगे, n विल बी 2 -1, 2 - 1 is 1, so this will be 0.835. this is degree of dissociation. और अगर परसेंटेज आयनाइजेशन पूछी होती तो आंसर वुड हैव बीन 80, इट विल बी 0.853. और अगर परसेंटेज आयनाइजेशन पूछी होती तो इट वुड हैव बीन 85.3%. so this was a very easy but very important numerical, जिसमें आपने पहले I निकालना है. I will be equal to normal upon observed molecular masses
और दैट इज इक्वल टू 1.835 इस केस में, और उसके बाद अल्फा निकाल देंगे आप I - 1 अपॉन n - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0.853, 85.3% ionization of this AgNO3 in this case. And next numerical is eight gram of HBr is added in 100 gram of H2O. 100 gram of H2O. The freezing point will be freezing point पूछा उसने, और Kf is given, Kf is equal to 1.86, masses are also given, hydrogen का 1 and Br का it is 80. This is the information which he has given. और उसने पूछा freezing point निकालिए इसका. freezing point निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? जब भी freezing point की बात आती है तो depression in freezing point निकालिए. और depression in freezing point क्या है? delta TF. You have to calculate delta TF, depression in freezing point in this case, and delta TF is equal to I Kf into molality. So I will be HBr है तो I will be 2, Kf is 1.86, molarity you have to calculate, molarity होती है number of moles of solute. 8 ग्राम HBr है तो weight of HBr, number of moles निकालने के लिए Wb upon Mb, 8 upon molecular mass of HBr will be 1 plus 80, that is 81. नीचे चाहिए सॉल्वेंट का ग्राम्स में वेट लिखना है आपने, दैट इज 100 ग्राम ऑफ H2O, दैट इज सॉल्वेंट, अपॉन 1000. दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF, और डेल्टा TF इन दिस केस इज 3.67 डिग्री, 3.67 ओनली, दैट इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. अब डिप्रेशन पता चला है, जल्दी में ये नहीं करना कि जस्ट आपने आंसर 3.67 लिख देना है, क्योंकि ऑप्शंस में मोस्ट प्रोबेबली आंसर्स में जो ऑप्शंस होंगी 3.67 विल ऑलवेज बी देयर टू पजल यू. इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना है, उसने पूछा फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है, इसने फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है. दिस इज जस्ट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. वाटर सॉल्वेंट है, वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, डिप्रेशन आ गया है 3.67 का, तो व्हाट शुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट? 0 minus 3.67, that is answer has to be minus 3.67 degree Celsius. This will be the freezing point of this particular solution. So next important numerical is the Van 't Hoff factor given है यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट के लिए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी हुई है. So next question is the Van 't Hoff factor for 0.1 molar barium nitrate is, solution is 2.74. Degree of dissociation you have to calculate, alpha you have to calculate. So in this question also you have to calculate Van 't Hoff factor, that is I you have to calculate. So what will be I? I निकालने पहले तो I निकालेंगे आप. What should be I in this case?
molarity is given or Van't Hoff factor that is given 2.74. Now alpha calculate करने के लिए I minus 1 upon n minus 1. So what is I in this case? 2.74 minus 1 divided by n in this case is, what should be n? कितने ions बनेंगे? Barium 2 positive, 1 ion, and they will be twice NO3 single negative. That means total 3 ions will be formed. So 3 minus 1, that is 2, and this will be equal to 1.74 divided by 2, and this will be 0.87. So this was very straight numerical that I is given और I दिया हुआ है, alpha you have to calculate, alpha will be I minus 1 upon n minus 1, so this will be 0.87. Next question is, an aqueous solution freezes at minus 0.186 degree Celsius. Kf given है, Kf is equal to 1.86 and Kb is also given 0.512. Kf and Kb are given. What is the elevation in boiling point? You have to calculate delta TB, elevation in the boiling point. इसमें देखिए given क्या है, delta TF is given. Delta TF given है, depression in freezing point is given. Delta TF, आपको पता delta TF होता है KFM. अब we will take only KFM because I के बारे में तो हमें कोई information है ही नहीं, इसमें कोई solute नहीं given. तो delta TF is equal to KFM and delta TF क्या है, 0.186 only. This will not be minus 0.186. Depression इतना है, KF given है 1.86. You have to calculate the molality और इस equation से molality निकालेंगे अगर तो वो आ रही है 0.1. पहले delta TF वाली equation से you will calculate the molality which is equal to 0.1 और उसके बाद second equation में क्योंकि delta TB calculate करना है तो delta TB will be equal to KBM. KB is 0.512 into molality is 0.1 and this will be equal to 0.0512. This will be elevation in the boiling point. So next important question is, arrange the following solutions in the increasing order. In the increasing order of their osmotic pressure. और solutions है देखिए, first is 34.2 grams per liter sucrose. Second solution जो है वो है 60 grams per liter urea, that is NH2 CO NH2. Third solution is 90 grams per liter glucose. Fourth solution is
58.5 grams per liter NaCl। सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि अगर आपने अरेंज करना है किसी भी कुछ सॉल्यूशंस गिवन हो आपको और यू हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी गई हो उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना हो, तो सबसे पहले आपको मोलैरिटी निकालनी है। यहाँ पे यू आर गिवन 34.2 ग्राम्स पर लीटर सुक्रोज। अब इसको मोल्स पर लीटर में कैसे करेंगे आप? जो वेट होता है, वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने क्या करना है इसमें कि जितना वेट गिवन है अगर इसको आपने मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइड दिस 34.2 डिवाइडेड बाय 342 एंड दैट विल बी 0.1 मोल्स पर लीटर और मोलर। तो इस केस में 34.2 में ग्राम्स पर लीटर जो गिवन है सुक्रोज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज इज 342। आपने जितना वेट गिवन है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है, दैट विल गिव यू द मोल्स, दैट विल गिव यू द मोलैरिटी। सेकंड केस में भी ऐसा ही करना है आपने, 60 ग्राम्स पर लीटर, 60 और NH2CO NH2 जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज आल्सो 60, तो दिस विल बी 1 मोलर। ग्लूकोज, ग्लूकोज is C6H12O6 and that is 180, so 90 divided by 180 that is 0.5 molar। एंड NaCl के केस में 58.5 ग्राम्स पर लीटर, NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 23 प्लस 35.5, 58.5 होता है, तो 58.5 से डिवाइड करेंगे दैट विल गिव द मोलैरिटी। अब देखिए जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, दैट मींस दैट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव मोलैरिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव मोलैरिटी। इफेक्टिव मोलैरिटी का क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव मोलैरिटी? जो इफेक्टिव मोलैरिटी मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, इफेक्टिव मोलैरिटी का मतलब है आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट number of ions formed by the dissociation also, I have to take into account कि कितने आयंस बनेंगे अगर वो पर्टिकुलर सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है। इसमें सारों में सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये तो डिसोसिएट नहीं होंगे ना एसोसिएट होंगे। NaCl is the salt and it will dissociate, it is an electrolyte which will dissociate to form two ions। NaCl दो आयंस बनाएगा, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, तो इफेक्टिव मोलैरिटी इसमें क्या हो जाएगी NaCl में, दैट विल बी 2, 1 into 2, that is effective molarity will be 2, इसमें it is 1 only, इसमें it is 0.1, इसमें it is 0.5। अब जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है, इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर में आपने इनको अरेंज करना है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव मोलैरिटी, दैट मींस सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव मोलैरिटी किसकी है, NaCl की। सो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होना चाहिए, NaCl का। सो दिस विल बी द मैक्सिमम NaCl, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इट विल बी यूरिया एंड आफ्टर दैट it has to be glucose and last में it will be sucrose। so answer has to be NaCl सबसे ज्यादा, उसके बाद यूरिया, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद सुक्रोज। तो ये तो थी बात, इनको अगर अरेंज करना होता आपने अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर्स और अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर्स। अगर पूछ लिया जाए कि यही सॉल्यूशंस हैं लेकिन इनको अरेंज करना है आपने अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट्स और इंक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट्स, तो फ्रीजिंग पॉइंट्स में आपने देखना है उसमें कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। जब भी फ्रीजिंग पॉइंट की बात आ जाती है तो आपने बात करनी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में होना चाहिए, सबसे ज्यादा डिप्रेशन होगा जिसकी इफेक्टिव मोलैरिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट NaCl का ऑर्डर बाकी वही रहेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स का ऑर्डर यही रहेगा।
अब ये बताइए कि जिसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट में, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे लोएस्ट। जैसे मैं दो एग्जांपल्स लेता हूं, दो सॉल्यूशंस हैं, एक में डिप्रेशन हुआ एक्व सॉल्यूशन से, एक में डिप्रेशन हुआ मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस से, एक में डिप्रेशन हुआ मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस से। तो अब ये वाली एक्व सॉल्यूशन कहां पे फ्रीज करेगी? -2 डिग्री सेल्सियस पे। और ये वाली कहां पे फ्रीज करेगी? -4 डिग्री सेल्सियस पे। जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा, जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रिपल में इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने हैं कि आपने डेल्टा टीएफ निकालना है। डेल्टा टीएफ किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव मोलैरिटीज पे। दैट मींस ऐसा केस हो अगर जैसे ये दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन आना चाहिए था इस केस में NaCl के केस में, इसलिए सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा और सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट विल बी फॉर सुक्रोज। तो फ्रीजिंग पॉइंट्स पूछे होते तो ऑर्डर उल्टा हो जाना था, सुक्रोज का मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद यूरिया, उसके बाद NaCl। So this was some, these were some important numericals. Now we will come to next topic, and next topic is we have to discuss solubility of gases in liquids. That means we will discuss about the solutions of gases in liquids. Solubility of gases in liquids. सबसे पहले solubility of gas in liquid क्या चीज है? Solubility means अगर गैस डिसॉल्व कर जाए, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन है इसकी कि solubility of gas in liquid can be defined as volume of the gas in cc's that gets dissolved per cc of the solvent. So it is the solubility of a gas in a liquid can be defined as volume of the gas in cc's that gets dissolved in 1 cc of the solvent. This is the solubility. Now solubility of a gas in a liquid जो है ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड बोथ। फर्स्ट फैक्टर जिसपे सॉल्युबिलिटी गैसेस की डिपेंड करती है लिक्विड्स, दैट इज नेचर ऑफ द गैस एंड द लिक्विड, कि कितनी ज्यादा इंटरेक्शंस हैं गैस और लिक्विड्स में। जितनी ज्यादा इंटरेक्शंस होंगी गैस और लिक्विड में उतना ज्यादा वो गैस सॉल्युबल होगी, जितनी कम इंटरेक्शंस होंगी उतनी कम सॉल्युबल होगी। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस वाटर में ये लेस सॉल्युबल हैं, लेकिन कुछ गैसेस जैसे NH3 एंड CO2 दे आर वेरी वेरी सॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या है? रीजन यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उतने ज्यादा इंटरेक्शंस नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जितनी ज्यादा इंटरेक्शन CO2 और NH3 और HCl की हैं। Therefore, larger the interactions between the gas and the liquid molecules, more will be the solubility of the gas in the particular liquid. सेकेंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है solubility of gas in liquid, that is temperature. इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, हमें ये रिएक्शन एक्सप्लेन करना है कि गैस प्लस
सॉल्वेंट जिसमें सॉल्युबल है, डिसोल्यूशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि जब गैस डिसॉल्व होती है एक लिक्विड में, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसी? गैस इन लिक्विड। और जब डिसोल्यूशन होता है, जब गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड में, इट इज accompanied बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट इवॉल्व होती है इसमें। तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पता होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल सेज कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहो, आप डिस्टर्ब कैसे भी कर सकते हो। यहां पे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं टेम्परेचर राइज करवा के या टेम्परेचर लोअर करवा के। तो जब भी आप, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है, जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा so that to undo the effect which has caused it। फिर से बताता हूं मैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, जैसे ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा so that it can counter the effect which has caused it। काउंटर करेगा उसको। जैसे यहां पे देखिए, अगर राइट हैंड साइड में ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है तो हीट इवॉल्व होगी। अगर आप टेम्परेचर राइज करवा दो इस इक्विलिब्रियम का, तो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर राइज करवा दो तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहिए? बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम चाहेगा कि जितना हीट ज्यादा आई है, टेम्परेचर राइज करवा के जितनी हीट ज्यादा आ रही है, आई कैन काउंटर दैट। इक्विलिब्रियम कहेगा कि मैं उसको काउंटर करूंगा। काउंटर कैसे कर सकता है? कि जितना टेम्परेचर रेज करवाया है वो हीट एब्जॉर्ब हो जाए। अगर इस साइड को ये एक्सो है, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस साइड को क्या होगा? एंडोथर्मिक। सो व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इस साइड को अगर शिफ्ट करेगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी, उस साइड को अगर शिफ्ट करेगा तो हीट इवॉल्व होगी। अगर टेम्परेचर मैं इसका राइज कराता हूं इस इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो टेम्परेचर राइज करवाया है, इक्विलिब्रियम चाहेगा मैं उस टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दूं। और लोअर डाउन कैसे कर सकता है? अगर ये बैकवर्ड में शिफ्ट करता है, एंडो की तरफ, हीट एब्जॉर्ब करवा देगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा हुआ है उसको वापस वहीं पे ले आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर आप राइज करवा रहे हो तो ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड शिफ्ट हो रहा है। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ? कि गैस इवॉल्व हो रही है। डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है, सॉल्युबिलिटी जो है गैस की, वो डिक्रीज कर रही है विद द राइज इन टेम्परेचर। सो विद द राइज इन टेम्परेचर, solubility of the gas decreases. With the decrease in the temperature, solubility should increase। क्योंकि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करवाएं इसका, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है उसको मैं काउंटर कर दूं। और काउंटर कैसे कर सकता है? इस साइड को अगर शिफ्ट कर जाए एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करो। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट टेम्परेचर राइज करवाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज करवाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। थर्ड फैक्टर is effect of pressure। Third factor is effect of pressure, and this is very important. This factor is very important, effect of pressure on the solubility of the gas. And this can be defined, this can be easily understood with the help of a law given by the scientist Henry, and this law is Henry's law। और Henry's law कहता है कि M is directly proportional to P। इसका मीनिंग क्या है? M is mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent, mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent, and P is the pressure of that gas above that liquid। जितना ज्यादा प्रेशर होगा
above the liquid, जिस गैस की आप डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, उसका जितना ज्यादा प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर, उतनी ज्यादा वो गैस डिसॉल्व हो जाएगी उस पर्टिकुलर लिक्विड में. Higher the pressure of the gas above the liquid, higher will be the mass of that gas which gets dissolved in that liquid. तो M is directly proportional to P. Proportionality sign अगर हटाया जाए तो M is equal to KHP. KH is Henry's law constant. It depends upon nature of the solvent, nature of the solute and the temperature. It depends upon nature of solute, nature of solvent and the temperature. So Henry's law एक बार फिर देखिए. Henry's law says the mass of the gas dissolved per unit cc of the solvent is directly proportional to pressure of that gas above the liquid. M is equal to KHP. KH is Henry's law constant and it depends upon nature of the solute, nature of the solvent and the temperature. इस लॉ को डाल्टन ने थोड़ा मॉडिफाई किया है और डाल्टन कहता है कि XA is directly proportional to PA. डाल्टन ने ये लॉ इसलिए दिया, उसने कहा कि अगर बहुत सारी गैसेस हैं, 3-4 गैसेस हैं और एक लिक्विड है, तो हर एक गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर लिक्विड में, वो उसने कहा XA से सॉल्युबिलिटी डिफाइन की. XA is actually the mole fraction of a particular gas A inside the liquid. XA is the mole fraction of a particular gas A inside the liquid. That means mole fraction जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वो soluble होगी. XA is nothing but this is solubility of the gas and PA is the partial pressure of that particular gas A above the liquid. तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ए गैस का अबव द लिक्विड, उतनी ज्यादा वो सॉल्युबल होगी, उतनी ज्यादा उसकी मोल फ्रैक्शन होगी इनसाइड द लिक्विड. XA विल बी इक्वल टू KHPA. एक तो ये फॉर्म आती है डाल्टन लॉ के केस में, जब डाल्टन ने दिया है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके कि XA विल बी इक्वल टू KHPA. और इस केस में अगर ऐसा वाला रिलेशन यूज होता है तो KH के यूनिट्स क्या आने चाहिए? व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ KH इन दिस केस? KH की वैल्यू क्या आ रही है इसमें देखिए, KH इज इक्वल टू XA अपॉन PA. XA अपॉन PA. XA मोल फ्रैक्शन के तो कोई यूनिट्स नहीं होने. PA के क्या यूनिट्स होते हैं? PA इज पार्शियल प्रेशर, यूनिट्स विल बी एटमॉस्फेयर या बार. तो KH के क्या यूनिट्स आ जाएंगे इस केस में? यूनिट्स विल बी एटमॉस्फेयर इनवर्स और बार इनवर्स. तो अगर तो ये रिलेशन यूज हो रहा है तो देखिए यहां पे हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी. और अगर ये रिलेशन यूज हो रहा है तो वो आपने पता कैसे लगाना है मल्टीपल चॉइसेस में कि अगर KH के यूनिट्स एटमॉस्फेयर इनवर्स या बार इनवर्स हैं, दैट मीन्स ये वाला रिलेशन यूज हो रहा है कि XA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, XA इज इक्वल टू KH इंटू PA. और अगर KH के यूनिट्स एटमॉस्फेयर इनवर्स बार इनवर्स गिवन है तो दैट मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ KH, जितनी ज्यादा हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होगी किसी भी गैस के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. बिकॉज रिलेशन देखिए आप, XA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे KH और XA का क्या रिलेशन आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये. हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी. लेकिन ये तब यूज करना है अगर यूनिट्स ऑफ KH एटमॉस्फेयर इनवर्स या बार इनवर्स गिवन है, क्योंकि XA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA एज वेल एज PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA. ऐसे भी यूज किया जा सकता है ये. This relation can also be used in this manner that PA is directly proportional to XA. और अगर ऐसे यूज करें तो PA will be equal to KH XA. अब इसमें देखिए KH के क्या यूनिट्स आ रहे हैं? KH के यूनिट्स इसमें होंगे PA के बराबर. पार्शियल प्रेशर के क्या यूनिट्स होते हैं? एटमॉस्फेयर या बार. तो अगर एटमॉस्फेयर और बार्स यूनिट्स हैं KH के, तो उसमें देखिए कि KH और XA में क्या रिलेशन होगा?
इस केस में देखिए KH और XA में क्या रिलेशन होगा, KH विल बी इक्वल टू PA divided by XA. That means XA is the solubility, XA is the mole fraction of gas A inside the liquid. तो higher the value of KH, lower will be the solubility. तो अगर KH के यूनिट्स PA के बराबर, दैट इज KH के यूनिट्स एटमॉस्फेयर या बार्स यूनिट्स दिए हुए हैं आपको मल्टीपल चॉइसेस में कहीं पे क्वेश्चन में, तो आपने KH और XA में क्या रिलेशन यूज करवाना है, फिर हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी देन लोअर शुड बी KH. अगर KH की ज्यादा वैल्यू होगी तो सॉल्युबिलिटी की कम वैल्यू होगी. तो कौन सी वाली इक्वेशन यूज करनी है, दैट हैज टू बी केयरफुली चोजन अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स. एक बार फिर देखिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इस पे इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं या ट्रिपल ई में. XA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA. डाल्टन ने थोड़ा मॉडिफाई किया था जो हेनरीज लॉ था. XA जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस A इनसाइड द लिक्विड. दैट इज XA रिप्रेजेंट्स द सॉल्युबिलिटी ओनली, solubility of the gas inside the liquid, and this is directly proportional to PA, partial pressure of gas A above that liquid. Higher the partial pressure of the gas, higher will be the mole fraction of that gas dissolved inside the liquid. That means higher the partial pressure, higher will be the solubility of that gas. अगर ये वाले इक्वेशन यूज करते हैं हम, एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो XA will be equal to KH into PA. इसमें देखिए KH के क्या यूनिट्स आ रहे हैं, KH की वैल्यू आ रही है पहले XA अपॉन PA. दैट मीन्स इसके तो कोई यूनिट्स नहीं है. पार्शियल प्रेशर के क्या यूनिट्स हैं, एटमॉस्फेयर एंड बार. तो एटमॉस्फेयर इनवर्स या बार इनवर्स अगर यूनिट्स हैं KH के, दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस रिलेशन. और इस रिलेशन में देखिए हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर शुड बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस. और अगर KH के यूनिट्स आपको एटमॉस्फेयर या बार्स में दिए हैं, then you have to use this relation, PA is directly proportional to XA. PA will be equal to KH XA, और KH की वैल्यू आ रही है PA upon XA. that means KH के यूनिट्स आ गए एटमॉस्फेयर और बार. और इस केस में देखिए अगर KH के यूनिट्स आपको एटमॉस्फेयर या बार्स गिवन है, तो KH और XA में क्या रिलेशन है, that is inverse relation. that means higher the value of KH, lower should be the solubility of that gas inside the liquid. Next is that there are certain limitations of Henry's law. There are certain limitations of Henry's law. फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी कि गैस का जो टेम्परेचर है, जिसकी आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस गैस का टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो. जो रियल गैसेस हैं, अगर उसमें प्रेशर इज वेरी लो एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई, देन द गैसेस दे बिहेव आइडियली. दैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है कि आइडियल बिहेवियर होना चाहिए गैस का, तभी ये लॉज जो है हेनरीज के लॉज जो है दे विल बी एप्लीकेबल. अदरवाइज हेनरीज लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर प्रेशर इज वेरी हाई एंड टेम्परेचर इज वेरी लो. देन इन दोज कंडीशन सेल्सियस एक्वा सोल्यूशन है. अगर एक केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस का, तो इस केस में व्हाट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट. अगर डिप्रेशन 4 डिग्री सेल्सियस का है तो फ्रीजिंग पॉइंट इन दिस केस विल बी -4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नॉर्मली वाटर जो है वो फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे. अगर डिप्रेशन हो गया 4 डिग्री सेल्सियस का, तो अब सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज करेगी -4 डिग्री सेल्सियस पे. और दूसरा केस मान लीजिए डिप्रेशन है 2 डिग्री सेल्सियस का, तो इस केस में व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, -2 डिग्री सेल्सियस. अब जिसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर है.
इस क्वेश्चन में पूछा गया 23rd में कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल मोलैलिटी सेम दी है, विल बी हाईएस्ट फॉर, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट उसके लिए होना चाहिए जिसमें डिप्रेशन मिनिमम है। तो आपने इन सारी ऑप्शंस में देखना है कि डिप्रेशन किस में मिनिमम होगा, और मिनिमम डिप्रेशन किस में होना चाहिए, जिसकी वैल्यू, जिसमें आई की वैल्यू सबसे कम है। और सबसे कम आई की वैल्यू किस में है, देखिए ग्लूकोज में। इन केस ऑफ ग्लूकोज I इज इक्वल टू 1, क्योंकि ग्लूकोज ना तो डिसोसिएट होता है ना तो एसोसिएट होता है, तो I फॉर ग्लूकोज विल बी 1। और इसी केस में, ग्लूकोज के केस में सबसे कम वैल्यू है I की, बाकी आप देखिए सभी में I की वैल्यू ज्यादा है। ये जैसे कैल्शियम नाइट्रेट देखिए, उसमें I की वैल्यू विल बी 3। सबसे ऊपर वाला एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, वो भी सॉल्ट है, तो उसमें भी I की वैल्यू क्या होगी, 2 वैल्यू होगी I की। सी केस में भी I की वैल्यू क्या होगी, 3 वैल्यूज होंगी। तो I की वैल्यू लोएस्ट है ग्लूकोज के केस में, और जिस केस में I की वैल्यू लोएस्ट है उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल आल्सो बी लोएस्ट, और जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट। तो आंसर हैज टू बी डी, ग्लूकोज। 24th क्वेश्चन, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, we have to calculate the molarity of pure water. So what is molarity? वैसे molarity होता है number of moles of solute per liter of solution या 1000 milliliter of solution। अब प्योर वाटर की बात हो रही है, 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन मींस 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर ओनली, और 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर मींस 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर 1 मिलीलीटर वाटर होता है तो इट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 ग्राम, और अगर 1000 मिलीलीटर वाटर है तो 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। दैट मीन्स आपने ये निकालना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, और वही मोलैरिटी आ जाएगी। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट है यहाँ पे 1000 divided by molecular weight is 18, and this will be equal to 55.55. So the molarity of pure water is 55.55, so it will be 55.6 अगर राउंड ऑफ कर दें आप इसको। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर निकालने के लिए देखिए, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर जो है, मोलैरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इस केस में जब H2O की आपने मोलैरिटी निकालनी है तो 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन मींस 1000 मिलीलीटर ऑफ H2O, और 1000 मिलीलीटर ऑफ H2O मींस 1000 ग्राम्स ऑफ H2O। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ H2O। और किसी भी सब्सटेंस के अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, 1000 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज 55.55। इफ वी राउंड ऑफ कर दें अगर इसको, दैट विल बी 55.6। सो आंसर विल बी ए, 55.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन इज, which one of the following pairs of solution can we expect to be isotonic at the same temperature? Isotonic means ऐसी solutions जिनके osmotic pressures क्या हो, सेम हो। So isotonic solutions होती हैं जिनके osmotic pressure सेम हो, और osmotic pressure किनके सेम होंगे, osmotic pressure is ICRT, पाई इज इक्वल टू ICRT। दैट मीन्स आपने क्या करना है कि I इंटू सी जिनमें सेम है, इफेक्टिव मोलैरिटी जिन सॉल्यूशंस की सेम है उन्हीं में ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा।
तो अगर चेक करें इसमें, फर्स्ट देखिए यूरिया वाला जो केस है और NaCl वाला केस है, तो I इंटू सी देखिए यूरिया के लिए, तो ये ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरिया के लिए I इज 1, यूरिया डिसोसिएट नहीं होता है ना एसोसिएट होता है, तो यूरिया के लिए I विल बी 1, तो 1 इंटू 0.1 दैट इज 0.1 ओनली, और NaCl के लिए इट विल बी I is 2 for this, 2 into 0.1 that is equal to 0.2, तो ये तो सेम नहीं हुआ, तो आइसोटोनिक नहीं हो सकती है। बी ऑप्शन चेक कीजिए इसमें, यूरिया 0.1 यूरिया, 0.1 यूरिया मीन्स 0.1 ओनली, I into C। MgCl2 के लिए व्हाट विल बी I, MgCl2 के लिए कितने आयंस बनेंगे MgCl2 के, 3 आयंस बनेंगे, तो 3 into 0.2 दैट इज 0.6, तो ये भी आइसोटोनिक नहीं है। सी ऑप्शन, I NaCl के लिए इज 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2, और Na2SO4 के लिए I इज 3 इंटू 0.1 दैट इज 0.3, ये भी आइसोटोनिक नहीं है, देयरफॉर आंसर हैज टू बी डी ओनली, बट लेट्स चेक इट आउट फॉर डी। कैल्शियम नाइट्रेट कितने आयंस बनेंगे कैल्शियम नाइट्रेट के, 3 आयंस, 3 इंटू 0.1 दैट इज 0.3, और Na2SO4 के लिए कितने आयंस, 3 आयंस ओनली, और 3 इंटू 0.1 दैट इज 0.3, तो इस केस में इफेक्टिव मोलैरिटीज जो है I इंटू सी वैल्यू सेम आ रही हैं। जब आइसोटोनिक पूछा गया है तो ये अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर हम सेम मान रहे हैं दोनों सॉल्यूशंस का, R इंटू सी तो कांस्टेंट आ गए, तो पाई सेम कब होंगे, जब I इंटू सी उन दोनों के सेम होंगे। तो हमने इसमें देखा कि डी ऑप्शन में कैल्शियम नाइट्रेट I इज 3 इंटू 0.1 0.3, और Na2SO4 में I इज 3 इंटू 0.1 दैट इज 0.3, इट विल बी आइसोटोनिक। डी आंसर होगा 25th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th क्वेश्चन, the relationship between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 ग्राम ग्लूकोज और उसका प्रेशर दिया हुआ है P1 एंड 10 ग्राम यूरिया प्रेशर P2 एंड 10 ग्राम सुक्रोज प्रेशर P3 आर डिसॉल्व्ड इन 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो इसमें हमने सीक्वेंस में अरेंज करना है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट्स आर गिवन, ग्लूकोज का दिया हुआ, यूरिया का दिया हुआ, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट्स आर गिवन। तो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बीच में रिलेशन निकालना है। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। दैट मीन्स आप क्या कीजिए इसमें कि मोलैरिटी निकाल लीजिए। मोलैरिटी निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स आर सेम फॉर ऑल दीज सॉल्यूशंस, तो वॉल्यूम